کی جگہ پر جاتے ہیں، باپ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو سونپتے اور اس میں آرام پاتے ہیں۔ چھٹے دن خدا نے کام مکمل کیا اور اسی طرح چھٹے کلمے میں یسوع نے اپنا کام، اپنا مشن مکمل کیا اور کہا تمام ہوا۔ ساتویں دن خدا نے آرام کیا اور ساتویں کلمے میں یسوع بھی آرام میں داخل ہوئے اور اپنی روح خدا باپ کے ہاتھ میں دے دی، جو کہ آرام کی جگہ ہے۔ اپنی موت کے وقت یسوع کو تمام حالات پر قابو تھا۔ ان میں اتنی قوت تھی کہ بلند آواز سے کہہ سکے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا اختیار ان کے پاس تھا، وہ اس بات کو روک سکتے تھے، لیکن اب وقت آ پہنچا تھا کہ وہ ہماری خاطر دکھ اٹھائے۔ اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور ظالم لوگوں نے اس کا پورا نجات فائدہ اٹھایا۔ انہیں جتنا دکھ دے سکتے تھے دیا، لیکن اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ یسوع نے اپنے سارے کام مکمل کر لیے۔ اب وہ اپنی روح کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آج کے بعد کبھی بھی ظالم رومی سپاہی انہیں تکلیف نہ دے سکیں گے، وہ کبھی بھی شرمندگی نہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہ اپنی روح کو خدا میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ گار کا خدا کی عدالت میں جانا خوفناک بات ہے، لیکن ایک بیٹے کا خدا کے ہاتھوں میں جانا اچھی بات ہے۔ خدا باپ نے کیا کیا؟ باپ نے تیسرے دن یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا اور 40 دن کے بعد انہیں آسمان پر سر بلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے آگے ہر گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانوں کا، خواہ زمینوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ اور ایک دن جلد خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ اپنے جلال میں آئیں گے۔ پہلے انسانوں نے ان کی عدالت کی، لیکن اب وہ انسانوں کی عدالت کریں گے۔ پہلے وہ ان کے ہاتھوں میں تھے، اب وہ لوگ ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب وہ ان سے کہیں گے، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے حالات میں کیوں نہ ہو، ہمارا رابطہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جہاں یسوع مسیح نے صلیب پر ہے، وہ دکھ اٹھا رہے ہیں اور ان کے ارد گرد ایک بڑا ہجوم ہے جو انہیں تانے دے رہا ہے۔ ان کی رفاقت خدا باپ کے ساتھ ہوئی ہے اور وہ اپنی روح خدا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دانیل کو شیروں کی ماندہ میں ڈالا گیا، لیکن اس کا خدا کے ساتھ درست رہا تھا، اس لیے اس جگہ بھی آدھی رات کے وقت اس کی رفاقت خدا باپ کے ساتھ ہوئی۔ دے صلیب پر یسوع مسیح نے اپنے ابدی تحفظ اور باپ کے ساتھ ابدی رفاقت کا انتظام کیا۔ میرا باپ جس نے مجھے دے سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ ساتویں کلمے کے وقت ہم ایک تبدیلی دیکھتے ہیں۔ 6 گھنٹے سے یسوع صلیب پر تھے۔ انہوں نے ابلیس اور انسانوں کے ہاتھوں دکھ اٹھایا، باپ سے جدائی کے لہمات بھی برداشت کیے، لیکن اب سب کچھ ختم ہے اور یسوع کی روح خدا باپ میں وجال ہوتی ہے اور ان کا رابطہ خدا کے باپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت تبدیلی ہے جسے کوئی اندھیرے میں سے نور میں آ جائے یا جہنم میں سے جنت میں۔ صلیب پر لٹکائے جانے سے پہلے یسوع کا خدا باپ کے ساتھ رابطہ تھا۔ وہ دن اور رات خدا سے دعا کرتے، اکثر اوقات وہ علیحدگی میں خدا سے دعا کرتے۔ ان کے اور خدا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔
बाप का अल्फाज कितना खूबसूरत है जो यीशु ने बार बार इस्तेमाल किया। यीशु हमेशा आसमान की तरफ देखकर कहते, बाप जब उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए उस वक्त खुदा ने उनसे मुंह मोड़ दिया। अब यीशु ने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी है। उन्होंने हमारी खातर दुख उठा लिए हैं, हमारी खातर खून बहा दिया है और अपने काम को मुकम्मल कर दिया है। इसलिए वो वापस अपने बाप की बाहों में आ जाते हैं। जब तक वो इंसानों के हाथ में थे उन्होंने दुख उठाए और तकलीफ में रहे। यीशु ने कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल कर देंगे और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। गतसमनी में जब उन्होंने देखा कि उनके शागिर्द सो रहे हैं तो उन्होंने कहा, सोते रहो और आराम करो, क्योंकि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ पकड़वाया जाता है और जानते थे कि वो पकड़वाए जाएंगे। यीशु ने अच्छी मिसाल कायम की। जिस तरह मौत के वक्त यीशु ने अपना आप खुदा के हवाले किया, उसी तरह वो सारी जिंदगी भी खुदा की मर्जी के ताबे रहे। उन्होंने कभी भी अपनी मर्जी नहीं चाही, बल्कि हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा किया। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस जमीन पर सिर्फ एक ही शख्स है, यानी यीशु मसीह, जिन्होंने खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। एक गुनाहगार सिर्फ उसी वक्त बच सकता है जब वो अपने आप को यीशु मसीह के वसीला से खुदा के हवाले कर दे। यीशु मसीह कहते हैं कि दरवाजा खुला है, अपनी जिंदगी मेरे ताबे कर दे और हमेशा के लिए मुझ में महफूज हो जाओ। पुलिस रसूल को रोशनी नजर आई और उसने खुदावंद की आवाज सुनी और उसका फर्माबरदार हुआ। वो कहता है, खुदा का शुक्र है कि मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हूँ। वो जानता था कि अब वो खुदावंद में हमेशा के लिए महफूज है। एक अमीर शख्स यीशु के पास आया और यीशु ने उसे कहा कि अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दो और मेरे पीछे आ जाओ। वो ऐसा ना कर सका क्योंकि वो दौलतमंद था और दौलत से मोहब्बत बहुत करता था। इसलिए वो वापस मुड़ा और एक खाली खोखली जिंदगी बसर करने के लिए जो यीशु के बगैर थी। वो शख्स मरने पर कभी भी खुदावंद में महफूज ना होगा। जरूरी है कि हम मसीह भी इसी तरह जिंदगी गुजारे कि मरने का वक्त हम भी अपनी रूह खुदावंद में महफूज कर सके। हमें चाहिए कि अपनी राह में खुदावंद पर छोड़ दें और उन्हें अपनी जिंदगी का मालिक बनाएं। अपनी रूह खुदावंद पर छोड़ दें और उस पर तवक्कुल कर वही सब कुछ करेगा। यीशु के पास आने से पहले पुलिस बहुत सी चीजों के लिए जीता था, लेकिन जब यीशु के पास आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन वो खुदा पर तवक्कुल करने वाले थे, इसलिए उसे आग की भट्टी में भी उनका राब्ता खुदा के साथ कायम रहा। और जब बादशाह ने देखा तो 3 की बजाय 4 लोग भट्टी में नजर आए। आग की भट्टी में भी खुदावंद उनके साथ था, क्योंकि उनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था और खुदा का मुकम्मल भरोसा था। पुलिस और सलाब फिल्मों की जेल में थे। आधी रात को गुड़गुड़ाने की बजाय वो हमद के गीत गा रहे थे। खुदावंद उस कैदखाना में भी उनके साथ थे। आज अगर हमारे दिल भी खुदावंद के साथ जुड़ते हैं, हमारा रिश्ता भी खुदावंद के साथ है, तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में हो, खुदावंद हमारे साथ होगा और हमें हर मुसीबत में बचाएगा। तो नबी ने फरमाया, खुदा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा।
क्योंकि तू मेरे साथ है। यीशु ने मौत के दुख को मिटा दिया। अब ईमानदार के लिए मौत एक दरवाजा है जिसमें से गुजरकर हम दुखों की दुनिया से आराम की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से हम कमजोरी की हालत से कुव्वत की हालत में दाखिल हो जाते हैं। अगर हम यीशु की तरफ आखिरी वक्त में अपनी रूह खुदा के हवाले करें और वो हमें अपनी आराम और अपनी जिंदगी में दाखिल कर देता है। अगर हम यीशु पर ईमान लाएं और उनके वसीला से बाप तक जाएं तो हम भी यीशु की तरह खुदा को बाप कह सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। हम खुदा को बाप नहीं कह सकते जब तक हम यीशु को निजात दहिंदा कबूल कर ले, तो फिर हम अमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि खुदा हमें इन हालात पर गालिब आने की कुव्वत देगा। उस वक्त हम यकीनन मुश्किलात हालात में भी फतह हासिल करेंगे। यीशु मसीह के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी मौत, मगर इसका मुकाबला यीशु ने खुदा पर मुकम्मल भरोसा करके कहा। यीशु ने अपनी मौत से मौत के इलाके में जाकर मौत को फतह किया और नारा मारा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत का फतह लुत्फा होगी। बात जो खुदा की मर्जी के मौत को दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार और खलक के सुपुर्द करें। इसी बाहित में मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ और उसे यकीन है तो वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। मुश्किल हालात में भी यीशु का अमान खुदा बाप पर ही रहा और तीसरे दिन खुदा ने उन्हें मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा ने यीशु को मालूम किया, क्या बल्कि कब्र में से जिंदा करके निकाल दिया। इसी तरह अगर हम अपने आप खुदा के हाथों में दे देते हैं तो खुदा हमारी भी फिक्र करता है और मसीह में हमें भी कब्र और मौत पर फतह हासिल होगी। यीशु ने हमें सिखाया कि हमने मौत का मुकाबला किस तरह करना है। ईमानदारों को ये यकीन होना चाहिए कि मौत एक वसीला है जिससे हम खुदा की हजूरी में